Now, students, I want magnitude of electric charge on number of positive and number of negative charge. Okay, number of positive and number of negative charge. Okay, in 1 gram of water. Is this question clear, students? Yes. Try to get the answers. Since tomorrow I have your session, students. Yes. Yes. It's at 4. B plus good power is answer. How many positive and negative charge? Can you give me the answer? Can you give me the answer in decimals? Can you give me the answer in decimal? Magnitude of charge. B. Yes. So the rest of the students have you all understood what exactly the question is? Norman, what about you? Sir, one more. All right. Rishabh. Yeah. Try to get the answer, please. Jai, you have 2 devices or what, Jai?
Yes, anybody, students? Students, can I solve it for you all? Yes. नॉर्मल क्यों नहीं आता है? मुझे बता वाटर मॉलिक्यूल के लिए how many positive and how many negative charges do exist? Two positive. If I happen to go for water molecule, students chances in how many electrons and how many protons we consider? Because if I happen to go for an 18 grams of water, students, okay, there are how many atoms we consider? 6.023 into 10 raised to 23 molecules we consider in 18 grams of water. Therefore, students, in 1 gram of water, how many molecules? Can you get this answer first? The number of molecules kitna hoga, students? 6.02 into 10 raised to 23 divided by 18. So can I get the number of molecules? So इसको 6/18 ले लेना, 1/3 ले लेना. Get your answer in terms of round up. Doesn't matter in that case. तो मुझे बताओ, यानी 1 gram of water molecules के लिए, water molecule के अंदर, will get these many. Agreed? Yes. Okay. Now, if I have to go for 1 molecule of water, students, how many positive and how many negative charges do exist? मुझे बताओ, students. So 10 positive and 8 negative. Louder. Number of electrons and number of protons पूछा मैंने क्या पूछा स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 10. ऑफ कोर्स प्लस 8. 2 + 8 तो 10 होगा. जितने प्रोटॉन्स उतने ही कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स है. क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी देयर? एक मॉलिक्यूल के लिए इतना है तो तुम्हें कितने मॉलिक्यूल्स तो मिल गए स्टूडेंट्स? इसका आंसर निकालोगे तो क्या आंसर आएगा? गेट दिस. तो कहने से ये जो आंसर आएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ये जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, आया ना? Yes. Please, everybody listen carefully. 18 grams corresponds to Avogadro number. 1 gram corresponds to how much? 1 gram corresponds to these many molecules we consider. Agreed? 1 gram of a molecule will be this. 1 molecule of water will have 10 protons, 10 electrons. Okay, Jai. Students, यानी whatever answer you get multiply by 10. तो ये क्या होगा students? ये होगा number of positive and number of negative charge. ध्यान से सुनना. Number of positive and number of negative in 1 gram of water. ये नंबर पूछा मैंने, क्या पूछा? चार्ज. यानी जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, whatever answer I'll get it, what I'll do? I'll multiply by how much? 1.6 into 10 to minus 19. यानी my answer will be in terms of plus or minus, equal in magnitude, opposite in nature. Friends, क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes. Students, please, it's not only to few students, it's not only with either I'm speaking to Norman or Deep, or please others also. Hope that you are able to get it. Tariq, समझ में आया Tariq? हाँ, sir. Jai Sharma, Viraj, is it clear? Sir, can you Sir, repeat can the you last statement? ये वाला? When you divide it by 1.6 into 10 raised to minus 19. हाँ, कहाँ पे? मैंने मल्टीप्लाई किया भाई डियर, मल्टीप्लाई किया 1.6 into 10 to minus 19 मल्टीप्लाई किया मैंने. Okay, sir. सनिका, नहीं सनिका, प्लीज ध्यान से सुनना. सी कैसे करना है मालूम है? ध्यान से सुनना प्लीज सनिका. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो फॉर 18 grams of water. ये तो तुम्हें मालूम है ना, 18 grams of water corresponds to how many molecules? ये तो पता है तुम्हें? Yes, sir. So I want to go for 1 gram of water के लिए कितने molecules होंगे? तो क्या आंसर होगा? 6 into 10 raised to 23 divided by 18 में पकड़ता हूँ. चलो
है ना, तो 6 3 से 80, तो कहने से ये होगा 3.33 into 10⁻22 होगा समवॉट। Yes, sir. समझ में, अप्रोक्सीमेशन आई कंसीडर इन दिस केस, ठीक है। अगर 1/3 होगा तो 0.33 होगा, है ना। Tanika, is it clear? Students, is it clear to all of you Yes, all? sir. It's clear. Okay, now this is 1 gram of water. अभी मुझे बताओ 1 molecule of water अगर मैं लेता हूँ तो स्टूडेंट्स कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन, तो कितने प्रोटॉन्स और कितने ऑक्सीजन होते हैं। ये तो हाइड्रोजन में 10 2 प्रोटॉन, protons. हाँ, और यहाँ पे 6 यहाँ पे कंसिडर 8 थोड़ी एक्चुअली टोटल 10 प्रोटॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। 10 electrons. Agreed. So did you get the number of charges? Yes, 10 protons and 10. Now this is one molecule of water. Now 1 gram of water has how many molecules? Agreed. Therefore, can you find out the total number of protons and electrons in this minute? So can you get an answer for this? Yes, sir. So what will be Multiplied by 10. Yes, in 22 multiplied by 10. तो ये क्या हुआ, ये हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाउ मच, इन 1 ग्राम। बट आई वांट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो मल्टीप्लाई क्या करोगा। What's the Yes, answer sir. I you're getting at? understood it. Is it clear? Yes, sir. Okay. What's the answer you're getting it? Please let me know about it. Sir, so that will be number of electrons in 1 gram. कौन से? 3.33 into 10. हाँ, in 1 gram, Sir, no. how many molecules are there? 18 grams के अंदर कितना molecules Sir, है? no, तो that last bracket. Last Pardon? bracket. ये वाला, Sir, last bracket. ये Yes, sir. तो ये तो चार्ज है ना। ये तो तेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है 1 ग्राम के अंदर। और अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रोटॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ चार्जेस। ये आंसर मेरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आएगा। ये होगा नंबर मल्टीप्लाई बाय चार्ज, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव, नंबर ऑफ नेगेटिव। क्लियर हुआ हर्ष, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, दीप, हाउ कम yes, sir. 32? ये आंसर तुम्हें मिला ना, ये आंसर मिला ना तुम्हें हर्ष, ये आंसर तुमने निकाला। दीप, ये आंसर निकाला ना अभी तक तो। आई वांट दिस फाइनल आंसर, चार्ज। तो मैंने उसको ही मैग्नीट्यूड भेजा। Pardon? Sir, I sent the magnitude of charge in the final answer. फाइनल आंसर कैसे होगा यार, हेलो, चाहे फाइनल आंसर कैसे होगा। मुझे आंसर देखो ना क्या मिल रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 16 बाय एस्टिमेशन से, 16 3 48 मुझे मिल रहा है। 16 3 48, 49 50 51 51, मेरा आंसर 5 में आ रहा है, कहाँ से 3 में आएगा। सी नॉर्मन इज पुट फॉरवर्ड द आंसर। अगर तुम करेक्ट वैल्यू लोगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर आना चाहिए, प्लीज योर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स इज प्लस और माइनस चार्ज, आई एम स्पीकिंग अबाउट चार्ज, प्लस और माइनस 5.35 into 10 to the power of 4 Coulomb. देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24, you'll get the answer in terms of 10 to 4 Coulomb. ये फाइनल आंसर तुम्हारा आना चाहिए। तारिक, तुम्हारा भी गलत है। सनिका is now fine. Sanika is proper.
Deep and Tariq, please rethink onto it. Students, are you clear? Yes. Can I erase this? Yes. प्लीज होप सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. प्लीज डोंट टेक इट ब्लाइंडली. अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बताओ स्टूडेंट्स. ओके, मैंने ये डायरेक्टली कर दिया स्टूडेंट्स. ये एक्चुअली है 6.023 है, इसलिए तुम्हें आंसर एग्जैक्टली एस्टिमेशन से मुझे मिल रहा है 5 के आसपास. आंसर 5.35. अगर तुम करेक्ट कैलकुलेटर से करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा आंसर स्टूडेंट्स. Are you getting it? You will get the answer in that case. And this question was based on the quantization of electric charge students. That is, electric charges quantized students. Q is equal to plus or minus any students. The students, I told you about electric charge. SI unit is Coulomb. CGS unit we consider as stat Coulomb. 1 Coulomb is 3 into 10 to the power of 9 stat Coulomb. Students, that also I made it very, very clear to your students. Okay. Then for the students, I made you all to work out with different properties of electric charge students. Okay, charges, electric charge is a scalar quantity. You can add and subtract also. Then I told you about net charge on a conductor. Agar tum dekhoge, so it's because of the presence of the charge we consider. Okay. If in case if I say where do the charge reside, then charge always reside on the surface. They always reside on the surface. Then I told you about, is there any electric field intensity inside a charge conductor, students? What will be your answer? Is there any electric field intensity inside a charge conductor? Or electric field intensity always resides outside the conductor? Outside the. Always outside. Students, electric field intensity inside the conductor is always zero. E inside is always zero. ये ध्यान में रखना students. Okay, I made it very clear to you all in that case. अगर कोई charge positive है तो positive charge distributed होता है surface के ऊपर students. Electric field lines originate होते हैं positive charge से और terminate होते हैं negative. They start perpendicularly और तो terminate भी होते हैं perpendicularly students. Then I told you about the distribution of charge also students. Charge along the length, charge along the area, charge along the volume. Agreed? That I made it very clear to you all students. Then I told you that if in case of the charge is distributed on the surface, we consider जहाँ पे smaller area होगा वहाँ पे distribution ज़्यादा होगा. Symmetrical shape होगा तो वहाँ पे charge uniformly distribute हो जाएगा. फिर अगर वो charges तुम count कर सकते हो, यानी अगर charge discrete manner में होगा तो simply we can consider Q is equal to plus or minus any quantization. लेकिन अगर suppose continuous manner होगा तो integration of dq will be capital Q students. Okay, then I told you about the law of conservation of electric charges. Charges can neither be created nor destroyed. It can be transferred from one to the other. The net charge always remains constant. उसको explain करने के लिए मैंने क्या बोला था? Glass और silk cloth को मैंने लिया था. If I rub this glass with silk, what exactly I told you? Glass had induced a positive charge. Silk has induced a negative charge. Net charge was zero students. I took fur and ebonite also. Negative and positive. Ebonite was negative. Fur was positive. Net charge was zero in that case also students. So that was a part which I made it very clear to all of you all. Then after that, I told you about with respect to your molecules, polar molecules we consider. Okay, that is molecules which has a clear center of mass to be concurrent in that case. The center of charges. Are you getting it? Which are at a certain finite distance. Students, agar center of charges are at a certain finite distance with each other, those are polar molecules.
लेकिन जिनका सेंटर कॉन्करेंट है then they are non-polar molecules. I made it very clear with that also. Okay, so two charges equal in magnitude, opposite in nature, results in formation of a dipole. ये भी मैंने बताया था. Example मैंने water molecule का दिया था. Water molecule के अंदर angle 105 degrees बताया था. Net charge on oxygen we consider was 2 negative. Net charge hydrogen का 2 positive. लेकिन दोनों का centers very well separate था students. Center of charge separate था. सेंटर ऑफ चार्ज पे सेपरेट था. ऑक्सीजन का +2e था और दोनों हाइड्रोजन का मिला के -2e. अगर वो दोनों सेपरेट है तो उसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी एक डाइपोल क्रिएट हुआ. डाइपोल का मतलब 2 पोल्स, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव. वो ही मैंने कंपेयर किया मैग्नेटिज्म के साथ में. स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म में हमें आइसोलेटेड पोल कभी नहीं मिलता है. हमें चार्जेस सेपरेट मिल सकता है, सेपरेट पॉजिटिव सेपरेट नेगेटिव चार्ज मिल सकता है, लेकिन आइसोलेटेड नॉर्थ आइसोलेटेड साउथ कभी नहीं मिलता. So that's what I made it very clear to you all students. Then actually, how do you get an isolated charge, or how do you make an uncharged conductor electrically charged? तो तुरंत में मेथड गया था, फ्रिक्शन गया, इंडक्शन किया, कंडक्शन भी किया हम लोगों ने. फ्रिक्शन में रबिंग वन बॉडी ऑन टू द अदर, तो एक बॉडी लूज करता है चार्ज, दूसरा बॉडी गेन करता है. जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो दूसरा गेन करेगा वो नेगेटिव बन जाता है. इंडक्शन के अंदर व्हाट एग्जैक्टली कंसिडर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट. Again, no physical contact, opposite charge is induced. अगर कंडक्शन होगा तो आइडेंटिकल चार्जेस been induced. दोनों के बीच में फिर रिपल्शन होता है. एक क्लियर एग्जांपल मैंने बोला था, दो स्फीयर्स है स्टूडेंट्स, दो स्फीयर्स है. एक के अंदर चार्ज +10 माइक्रोकूलम है, दूसरे के अंदर -20 माइक्रोकूलम है. दोनों को मैंने फिजिकल कांटेक्ट में रखा. I kept it in physical contact with each other students. You're getting it? And then if in case if I ask what is the net charge on each of them, तो क्या बोलोगे? -5. क्योंकि देखो +10 -20 का आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स? -10. होप यू आर लिसनिंग टू मी स्टूडेंट्स. दो कंडक्टर लिया है, एक +10 माइक्रोकूलम, दूसरा -20 माइक्रोकूलम. दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में रखा है स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज द नेट चार्ज? +10 -20, व्हाट इज द आंसर? -10. So can I say the net charge is -10. So now what is the charge on each of them? Each will have -5 microcoulomb. क्या होगा? There will be a force of repulsion. This is what I made it very clear to you the students during the conduction part of it. Then I told you about electric field. Hypothetical होती है, जैसे gravitational field होती है, जैसे magnetic field होती है, वैसे electric field भी होती है. वो hypothetical होती है, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका presence होता है. वो कहाँ पे होता है? Surrounding a particular positive charge भी consider एक field होती है. फिर electric field lines के बारे में बताया. फिर electric field lines कभी intersect नहीं होता है, क्योंकि intersection एक point होता है. And a tangent drawn at that particular point always determines the direction of electric field at that point. Students, ये clearly बताया गया था तुम लोगों को. So I told you about the characteristics of electric field lines we consider. They travel from positive to negative. They do not form a closed loop we consider. So all the characteristics of electric field lines was told to you students. एक particular point मैंने ये भी बोला था, एक particular point जहाँ पे resultant electric field intensity 0 होता है, that is called as the neutral point. अगर दो लाइक चार्जेस है, दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड 0 हो जाती है स्टूडेंट्स. सो ऑल दिस थिंग्स वाज वेरी वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड टू यू. ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर था. द नेट चार्ज Q इज इक्वल टू व्हाट? n टाइम्स E. हमने क्या फाइंड आउट किया अभी इस प्रॉब्लम में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कहाँ पे? ऑन 1 ग्राम ऑफ वाटर. 18 ग्राम्स के अंदर मुझे इतने मॉलिक्यूल्स मिले, तो 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल में कितना है? 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने प्रोटॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय दैट, और फिर मल्टीप्लाई बाय चार्ज कर दिया. एग्री स्टूडेंट्स? नाउ कैन आई मूव फर्दर स्टूडेंट्स? अभी आगे बढ़ो. Yes. Okay, now please pay attention students. Now when I move further students, now we speak about your concept related to your so-called Coulomb's force students. Okay. Okay, now listen carefully students. Coulomb's force, please pay attention. Students, it was Charles Augustin Coulomb students. He found out a relation between electrostatic force. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है स्टूडेंट्स. तो सपोज अगर मैंने पूछा टू charges, two like point charges of equal magnitude students.
are placed in a vacuum at a distance of 1 meter from each other, and if they repel each other by a force of 9 into 10 to the power of 9 Newton we consider, then the charge on each is 1 coulomb. ये जो definition of 1 coulomb आया ना students, ये coulomb's force के हिसाब से आया. Okay, तो उन्होंने क्या किया मालूम है? Two electric charges were considered, students. Let us say the two charges were Q1 and Q2. Suppose if I say two conductors or two spherical conductors, I'll consider, okay, and both of them are having charges onto each other, students. अब ध्यान से सुनना students. Suppose if I say अगर मैं इसको बोलता हूँ unit positive charge, ये भी unit positive, तो दोनों के बीच में होगा क्या? Force of repulsion होगा. अगर दोनों को नेगेटिव होगा तो भी force of repulsion होगा. एक को पॉजिटिव है दूसरे को नेगेटिव होगा तो there will be force of attraction. What is a line joining? The line joining, students, the center of the two charges we consider is the distance we consider r. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये दोनों चार्ज को अगर मैंने डिस्टेंस r पे रखा है तो क्या होगा? तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा. कौन किसको रिपल करेगा? ध्यान से सुना स्टूडेंट्स. The force of repulsion, please pay attention. The force of repulsion on 2 by 1. Force of repulsion on 2 by 1 will be in this direction. Agar there is a force exerted on 2 by 1, then at that instant, there is a force exerted on 1 by 2 also. Of course, ये है force exerted on 1 by 2. अगर तुम देखोगे, अगर मैंने बोला force exerted on 2 by 1, ध्यान से सुना स्टूडेंट, ये 2 क्या है? सर 2 जिस पे इफेक्ट हो रहा है. 1 क्या बन गया मेरा? सोर्स. यहाँ पे मैंने बोला force exerted on 1 by 2, तो 1 जिस पे इफेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, 2 क्या बन गया मेरा? सोर्स. तो force exerted on 2 by 1 and force exerted on 1 by 2 students, ये दोनों फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है. अगर तुम उनका मैग्नीट्यूड देखोगे ना सेम ही होगा, बट श्योरली दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अभी तुम बोलोगे सर ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ये फोर्स कौन से डायरेक्शन? चलो अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 by 1 स्टूडेंट्स, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 by 1, तो तुम क्या करोगे? हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 by 1, तो तुम ये सोचो ना, 2 यहाँ पे, प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. ये जो 1 है इसको तुमने सोर्स पकड़ा है ना स्टूडेंट्स, और यहाँ पे उसका पॉजिटिव चार्ज है. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये जो 1 है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है? तो तुम सीधा बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यस आउटवर्ड्स होगी, सरफेस से शुरू होती है, बाहर की तरफ जाएगी, नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो सर ये जो होगा ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा स्टूडेंट्स, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड एज कूलम्ब्स फोर्स. स्टूडेंट्स ये जो कूलम्ब्स फोर्स है इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये दो टाइप के हो सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो ये जो चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब था, Charles Augustin Coulomb, he founded a mathematical relation for this Coulomb's force, and for that he considered two electric charge. He considered 2 point charges. Point charge का मतलब क्या हुआ students? Can you tell me that? चलो मैं point mass बोलता हूँ, point mass या point charges. Students, can you tell me what exactly point mass or point charges? What exactly it means? तो बता सकता है? Students, what is point charge or point mass? If I happen to go for center of mass का concept के हिसाब से students, what exactly point mass बताओ? Yes, Deep, can you tell me? Norman, can you tell me? Can you tell me? Sorry, can you tell me? Sir, जिसका charge environment is so small inside. Students, But point it is mass. its center of mass. हाँ क्या बोल रहा हूँ? Sir, it has charge but has negligible size. नेग्लिजिबल साइज कभी होगा? हेलो स्टूडेंट्स, तुम उसको पॉइंट मास कभी बोलोगे स्टूडेंट्स? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द Sir, टू it is मास, center of mass. नहीं व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू masses इज वेरी लार्ज,
very large in comparison to the size of the two masses we consider. तो हर एक दूसरे के हिसाब से each will be considered as a point mass. Students, अगर दो masses को, अभी देखो ये दो point को अगर suppose मैंने आमने सामने रखा तो for this one is greater mass, this one is greater. अगर यही दोनों को मैंने दूर रख दिया तो can I call that as a point mass? So when the distance between the two masses is very large in comparison to the size of the two masses, each of them is considered to be point mass. तो वैसे ही point charge का मतलब क्या है? They are placed at a certain distance apart from each other. तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस लिए हैं. इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या है? सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है. सर आपने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है. कैसे है? एक सोर्स बनता है, दूसरा इफेक्ट होता है. अगर ये सोर्स हुआ तो ये इसको पुश करेगा, अगर ये सोर्स हुआ तो इसको. लेकिन अगर ये डायरेक्शन किस तरफ जाएगा तो तुरंत तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अगर मेरा वन सोर्स है स्टूडेंट्स तो टू विल हैव अ डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वन. अगर मेरा टू सोर्स हुआ then in that case the field will be in this direction we consider, so one will move in the direction of the electric field of the second. क्या ये part clear हुआ students? Yes. Now let us go for the expression for Coulomb's force. Charles Augustin Coulomb said the electrostatic, the answer suna students, the electrostatic force of attraction or repulsion between two charges, the electrostatic force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitude of the two charge. Is directly proportional to the magnitude of two charges, and it's inversely proportional to the square of the distance between the line joining their centers. That means line joining their charge we consider, the point charge we consider. So it's a distance between the two charges, smaller is the distance between the two charges we consider. Yani your electrostatic force is proportional to the product of the magnitude of charge, inversely proportional to square of the distance between the line joining the two charges. So does it obey inverse square law? अरे हाँ सर, this obeys inverse square law. क्या ये तुम्हारा फॉर्मूला ग्रेविटेशन के साथ में मैच होता है कि नहीं होता है? हाँ स्टूडेंट्स, इसी के पहले तुम लोगों ने ग्रेविटेशन किया कि नहीं किया? अरे हाँ सर, ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था. Gravitational force between two masses is directly proportional to the product of the magnitude of the two masses and inversely proportional to square of the distance between the center of the two masses. यहाँ पे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, यहाँ पे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ. लेकिन यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन के बारे में था सर, यहाँ पे रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों होगा. क्यों? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज. नेचर ऑफ द चार्ज का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव. तो ये हुआ स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन के हिसाब से, और ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से. क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. नाउ इफ आई वांट टू पुट इनटू वन, तो कहने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मैं ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिख रहा हूं तो क्या होगा सर? यहाँ पे मुझे C मिलेगा, वो एक कांस्टेंट है. C Q1 Q2 upon R square. What exactly C we consider is called as Coulomb's constant. जो तुम अगर दूसरे स्टूडेंट्स को पूछोगे जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ है, इफ यू ट्राई टू मर्ज विद एनी ऑफ द अदर बैचेस या दूसरे बैच के स्टूडेंट्स को तुम पूछोगे कि कूलम्ब्स फोर्स के अंदर कांस्टेंट क्या है, तो सारे के बोलेंगे. मैंने C लिखा है. क्यों? C is Coulomb's constant because students 1/4 pi. C represents 1/4 pi epsilon 0 K for a medium. K को मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट्स, ये K for the medium है और ये लिखना जरूरी है. I'll speak about this now. इसके बारे में हम बात करूंगा मैं. तो स्टूडेंट जब भी मैं सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सिंबल में निकालूंगा तो एक कांस्टेंट आता है. व्हाट इज दैट कांस्टेंट? 1/4 pi epsilon 0. ध्यान से सुनना, epsilon 0. इसको प्रोनाउंस ये करते हैं, लेकिन ये नाम क्या है? इसको क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी. Permittivity of free space. So free space का मतलब क्या है? Vacuum. VACUUM.
So students, what exactly Coulomb's force or Coulomb, what exactly Coulomb's law speaks about? Students, Coulomb's law speaks about the electrostatic force of attraction or repulsion between any two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charge and inversely proportional to square of the distance between the line joining the two charges. अगर किसी ने पूछा does it obey inverse square law, तुम्हारा आंसर होना चाहिए yes, inversely proportional to square of the distance. अगर मैं सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में निकालता हूं तो क्या मुझे कोई कांस्टेंट मिलेगा? हाँ सर कांस्टेंट मिलेगा. उसको मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? सी. सी को क्या नाम दूंगा मैं? कूलम्ब्स कांस्टेंट. सी कैसे लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के फॉर अ मीडियम. एप्सिलॉन 0 को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? एप्सिलॉन 0. दिस इज हाउ वी कंसीडर. इट्स एप्सिलॉन 0 समेशन के जैसे सिंबल है. व्हाट इज इट कॉल्ड? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम. What exactly K? What exactly K for medium we consider? K for medium is called dielectricity. Can anybody tell me, students, what exactly mean by dielectric? Students? The insulator. क्या बोल रहे हो? Insulators. Absolutely correct. Absolutely correct. Dielectric consider is sorry, it's non-conducting. Very good. Any dielectric medium we consider, students, it's non-conducting. It's an insulator we consider. Is that clear? The insulation के बारे में. Dielectric medium we consider. इलेक्ट्रिक का मतलब कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक का मतलब नॉन कंडक्टिंग. क्या ये कूलम्ब्स फॉर्मूला क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस. डायरेक्शन पता चला किस तरफ जाने वाला है. हाँ स्टूडेंट्स, फोर्स का डायरेक्शन ये ध्यान में रखना स्टूडेंट, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. इज दिस क्लियर? यस. ओके. कैन आई इरेज दिस स्टूडेंट्स? क्या इरेज कर सकता हूं मैं इसको? नो सर. ओके. This is electrostatic constant. Pardon? Coulomb constant ना. Yeah, C stands for Coulomb's constant. Coulombs, Coulomb's constant. Can I erase now, students? Yes. Good.
Now, when you go with respect to your force, incorrect way to write down, students. Let us go with respect to your vector notation, students. Okay. अभी आंसर सुनो students. यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दिया है. This I'll take it as 1. This is I'll take it as 2. The distance between them is r. Okay. Now suppose case 1, student. Answer is force is exerted on 2 by 1. Second, okay. Force is exerted on 1 by 2. How do I write down this in vector form? Okay. Same thing we can consider for, these are two positive charges. Same thing can happen for negative. लेकिन अगर मैंने positive लिया और negative लिया तो कैसे होगा? ये है 1, ये है 2. Let me take this as q1 and take this as q2. Negative distances are we consider. इन दोनों के बीच में भी distance are we consider as r. This is q1 and this is q2, students. Okay. So now in this case also we can consider force exerted on 1 by 2 in vector form. Agreed. Force exerted on 2 by 1 in vector form. मैं ये एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स, तुम इसका आंसर अपने आप से निकालना स्टूडेंट्स. स्टूडेंट दोनों पॉजिटिव चार्ज है. ओके. अगर मैं बोलूं फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 2 by 1 ऑन 2 by 1 तो 2 पे इफेक्ट होगा, 1 सोर्स बन जाएगा. हाउ टू रीड दिस? ओके. नाउ अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट्स अ फॉर्मूला, तो तुम्हें जनरल फॉर्मूला तो F is equal to 1/4 pi epsilon naught K for a medium q1 q2 upon r square, and this answer will be in Newton. This answer is in Newton. We consider it's a formula for force. We consider इसी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 by 1. तो स्टूडेंट्स ये होगा फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 2 by 1, है ना? 2 by 1. अब मुझे बताओ पोजीशन कौन दिखाएगा? पोजीशन क्या इफेक्ट को पूछोगे कि सोर्स कहाँ पे है, या सोर्स के पूछोगे इफेक्ट कहाँ पे? सोर्स को पूछोगे ना. यानी स्टूडेंट्स तुम सोर्स को पूछोगे कि भाई इफेक्ट कहाँ पे है, यानी तुम 1 को पूछोगे भाई 2 कहाँ पे है. क्या ये क्लियर हुआ? तो पोजीशन कौन दिखाता है स्टूडेंट्स? पोजीशन इज शोन बाय 1 वेयर इज 2. पोजीशन इज शोन बाय 1 वेयर इज 2. तो पोजीशन अपना अपना ये जो पोजीशन वेक्टर है वो अपना हाथ सामने करेगा. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना. इफ इन केस आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी चार्ज 1 चार्ज 2, तो मैं हाथ ऐसे करूंगा, तो मेरा पोजीशन वेक्टर, स्टूडेंट देखो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हुआ और ये मेरा फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 by 1, ये होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये होगा पोजीशन वेक्टर. स्टूडेंट्स टेल मी पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स आर दे इन सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन? क्या बोलोगे तुम? वो तो तुम्हारी व्हाट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन. फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 by 1 तो रिपल्शन हुआ, तो दोनों सेम. और ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगा? फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 by 1 इज in the direction of electrical intensity due to source. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, is it clear? Force exerted on 2 by 1 is in the direction of electrical intensity. So now अगर मुझे इसको फॉर्मूला लिखूं तो कैसे लिखूंगा? फिर ये होगा 1/4 pi epsilon naught T for a medium q1 q2 r cube position shown by 1 where is 2. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म में? Students, is this a correct formula? True or false? Yes. So it should be R1 to cap, not point to B. ये है पोजीशन शोन बाय 1 वेयर इज 2. मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा ना फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 by 1 पोजीशन शोन बाय 1 वेयर इज 2. वेक्टर फॉर्म में लिखा है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कौन सी साइन है? पॉजिटिव साइन है. उसका मतलब क्या हुआ? फोर्स और पोजीशन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, लेकिन डिनोमिनेटर मैंने r क्यूब लिखा है. क्या ये सही है? Yes. ऑफ कोर्स. स्टूडेंट्स क्यों लिखा? क्योंकि यूनिट वेक्टर का कांसेप्ट आता है स्टूडेंट्स. यूनिट वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? यूनिट वेक्टर इज अ रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. अभी आंसर देखना स्टूडेंट्स, इसी को अगर मैं यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आंसर होगा? आंसर देखना स्टूडेंट्स, 1/4 pi epsilon naught K for a medium. स्टूडेंट्स q1 q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, नीचे मैं r क्यूब लिखता हूं स्टूडेंट्स. अभी देखो ये वेक्टर फॉर्म को मैं क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स, r into r cap, and this is 1 2 students. स्टूडेंट्स ये r है मैग्नीट्यूड, r कैन आई कैंसिल दिस?
तो नीचे क्या आया, आर स्क्वायर आया कि नहीं आया? हाँ स्टूडेंट्स, आ गया तुम्हारा ये आंसर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, उसका मैग्नीट्यूड इज 1। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये तुम्हारा नीचे आर स्क्वायर आ गया। हाँ स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Yes. यानी जब भी तुम देखोगे ना स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ ईदर आर बार और यू कैन पुट इन टर्म्स ऑफ आर कैप। अगर सपोज मैंने डाला यूनिट वेक्टर शोन बाय 1/2, तो यहाँ पे मेरा आर स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ये हुआ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड। नाउ सपोज अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2, सर फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2 यानी डायरेक्शन किस तरफ गया, सर इस तरफ गया। ये होगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2, यानी यहाँ पे 1 क्या बन गया, तो फोर्स एक्सर्टेड 1 के ऊपर मींस इफेक्ट है 2 क्या बन गया, सोर्स फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर अ मीडियम Q1 Q2 नीचे R के ऊपर पोजीशन कौन दिखाएगा स्टूडेंट्स? क्या तुम 1 को पूछोगे 2 कहाँ पे, या 2 को पूछोगे 1 का है, सोर्स कौन है? 2. तो कहने से पोजीशन इज शोन बाय 2 वेयर इज 1। ये हुआ तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में। क्या यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन आएगा? हाँ सर, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अभी देखो ये पोजीशन जब दिखाएगा स्टूडेंट्स, ये जब 2 पोजीशन दिखाएगा स्टूडेंट्स, तो कहने से उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, पोजीशन शोन बाय 2 वेयर इज 1। ये हुआ, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। सपोज इफ आई ट्राई टू यूज डिफरेंट थिंग्स, if I'm trying to use different things, तो ये और ये एक डायरेक्शन में हो गया स्टूडेंट्स, और ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ 2 1 1 2, ये रेड इंक में आ गया। ये तुम्हारा ब्लू इंक में ले लेता हूँ मैं, फोर्स एक्सर्टेड 1/2, ये तुम्हारा ब्लू इंक हो गया, ये तुम्हारा ब्लू इंक हो गया। एग्रीड? अगर इसी को मुझे यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखूंगा, सेम थिंग 1/4 pi epsilon naught k for a medium students Q1 Q2 upon R square, position vector shown by 2 where is 1, and this is magnitude. Where is the direction of force? So the direction of force is the direction of electric field intensity due to charge 2. Sir, इसका जो direction होगा will be in the direction of electric field intensity due to charge 2. उसके direction होगा students electric field of 2 के हिसाब से। क्या ये clear हुआ students? Yes. Now can you get the answer for these two students? Huh? Can you get an answer for these two students? Yes. Get an answer in vector form, students. You want to complete it, just post your answer. Ankit, you asked me whose size is small. I saw your post right now. Hello, Ankit. Ankit, are you there?
अंकित, can you hear me? अंकित, अगर मैं तुम्हें कंपेयर करूं, अंकित, if I compare you with respect to the huge earth, तो अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? मुझे बता, सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ क्या कितनी दूरी पे है फ्रॉम यू? अंकित, can you tell me at what distance the center of the earth is from you? अंकित, आया ना तो बोल, नहीं आता तो मैं आंसर देता हूँ. रेडियस ऑफ द अर्थ, अंकित. Norman, coming to your answer. Norman, coming to your answer. Ankit, are you there? The distance between you and the center of the earth is equal to the radius of the earth. अरे हाँ या ना तो बोल अंकित. Okay. So radius of the earth is 6,400 kilometers, है ना? तो center of the earth will be huge mass. अंकित, अगर तो अर्थ का देखेगा तो उसका मास बहुत ह्यूज है, लेकिन डिस्टेंस इतना दूर है और तो अर्थ के ऊपर है, तो यू आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास. So in comparison to whom? With respect to a huge mass, you are considered to be a point mass. Why? Because you are at a very far distance. Agreed? And Norman has put forward his answers. Let's see what exactly is put forward. Okay. Sir, in that first one is F21, na? In first case. First case is force exerted on 1/2. Force exerted. Answer सुना. Sir, no, Force. हाँ. Sir, ऊपर वाला. हाँ, क्या होगा? अरे ये हाँ ये 1 2 होगा. Sir, ऊपर वाले में first one F12 है ना? या ये F21 है? F12 है, ये F12 है, तो ये पोजीशन वेक्टर 2 आना है स्टूडेंट्स. 2 आना है ना. Okay. Definition by 2. Agreed? ये तो 1 2 ही आएगा, 1 2 ही आएगा, बराबर है. सोर्स पोजीशन दिखाएगा, यहाँ पे सोर्स इज 2. एग्रीड? हाँ, क्लियर है. Yes. अभी देखो, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2. स्टूडेंट्स, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2. सो 1 क्या है जिस पर इफेक्ट हो रहा है? 2 क्या बन गया? सोर्स. तो अगर ये सोर्स है तो कहने से दिस बिकम्स माय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना स्टूडेंट्स? So force is exerted on 1/2. पोजीशन कौन दिखाएगा स्टूडेंट्स? पोजीशन कौन दिखाएगा? 2 1. हाँ, position is shown. The position is shown by 2. Where is 1? Are they in the same direction or opposite direction? Opposite minus. तो ये क्या होगा? -1/4 pi epsilon naught a q1 q2 upon r cube. Position shown by 2. Where is 1? इसी को अगर मुझे यूनिट वेक्टर में लिखना है तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी हाउ टू राइट एन यूनिट वेक्टर फॉर्म? ये फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं? ये देखो, ये क्या बताता है? ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? फोर्स एंड पोजीशन. R21 upon R. हाँ, लेकिन क्या नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. ऑफ कोर्स, क्योंकि ये वेक्टर है. अभी हम किस में लिखेंगे? मैग्नेटिक डायरेक्शन. ये नेगेटिव क्या लिखेगा? डायरेक्शन ऑपोजिट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी -1/4 pi epsilon naught a q1 q2 r square यूनिट वेक्टर 2 and 1. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes. वही अगर मैंने सेकंड केस के लिए लिया तो मैं डायग्राम चेंज कर देता हूँ. मेरा इसी के ऊपर ओवरलैप नहीं करूंगा. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 1, ये 2 and the distance between them I'll consider. Now students, अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना. Force is exerted on 2/1. Students, force is exerted on 2/1. तो 2 क्या बन जाएगा? इफेक्ट. 1 क्या बन जाएगा? सोर्स.
तो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 2/1 तो कहने से ये इस तरफ आएगा, है ना। फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 2/1, पोजीशन कौन दिखाता है, 1 दिखाएगा, तो कहने से ये होगा मेरा पोजीशन वेक्टर। Position is shown by 1, that is 2. Are they in same direction opposite? यहाँ पे भी opposite है, क्योंकि दोनों opposite charge है। Friends, अगर same charge होगा तो हमें positive sign मिलेगा। F and R are in same direction. लेकिन opposite charge होगा, opposite nature होगा, तो they'll be in opposite direction. इसका फॉर्मूला क्या होगा? -1/4 pi epsilon 0 K for a medium Q1 Q2 R cube. Position shown by 1, that is 2. वेक्टर फॉर्म में -1/4 pi epsilon naught k q1 q2 r square position shown by 1, that is 2. ये भी आंसर किसमें होगा सर, ये भी आंसर न्यूटन में आएगा और ये भी आंसर में न्यूटन में मिलेगा। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, is this clear to all of you all? Yes, sir. अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुना। अभी सी वन थिंग, डोंट फील इट इन दैट केस, अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो पूछो राइट नाउ। अभी ध्यान से सुनो, क्योंकि और मैं थोड़ा सा अभी और ज्यादा बताने वाला हूँ कॉम्प्लिकेटेड के लिए। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, 2 इस तरफ जा रहा है, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 1/2, इफेक्ट 1 है, 2 ये है। मुझे बताओ 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, बताओ। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 इज व्हाट? इज इट आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स? Inward. यानी देखो No. ध्यान से, ये देखो 2, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, 2 नेगेटिव चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड है ना स्टूडेंट्स, ठीक है नेगेटिव। और 2 क्या है, मेरा सोर्स है। 1 किस तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जा रहा है, देखो, इज द पॉजिटिव चार्ज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो मोशन कहां पे है, कहने से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ स्टूडेंट्स, क्या ये Yes. समझ में आया? वैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, इसके लिए क्या होगा, ये तुम्हारा फर्स्ट केस के लिए, ये तुम्हारा फर्स्ट केस के लिए, ये सेकंड केस के लिए। सेकंड केस के लिए कैसे डायग्राम आएगा स्टूडेंट्स, बताओ। अभी देखो, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 2/1, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 2/1। मुझे बताओ, ये जो 1 है, ये जो 1 है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगा, बाई की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। ये क्या है, आउटवर्ड है कि नहीं है? हाँ स्टूडेंट्स, 1 सोर्स है। फोर्स किसके पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है। 2 कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज देखो किस तरफ जा रहा है सर, नेगेटिव चार्ज का मोशन is it in the direction opposite to the electric field? Yes. यानी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज का मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज का मोशन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, Yes. नहीं सो व्हेन ये मैं क्यों दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्यों दे रहा हूँ मालूम है स्टूडेंट्स? तुमने शायद ग्रेविटेशन में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, ध्यान से सुने, एवरीबॉडी होल्ड फॉर अ मोमेंट। स्टूडेंट शायद तुम लोगों ने एक प्रॉब्लम मैंने दिया होगा, मैंने बोला था देयर आर 3 masses A B C each of mass m at a distance L centimeter apart from each other। एक फोर्थ मास मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लिया था, फिर मैंने फाइंड आउट द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन टू इट, तो हमें ये कैप में मिला था आंसर। कुछ याद आ रहा Yes. है? तो ये इसकी वजह से मैं दे रहा हूँ कि आई एम पुटिंग इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नोटेशंस, क्योंकि वेक्टर्स में ये सारे रूल्स क्लियर होंगे। इज दिस क्लियर? Is it clear to all of you all? Yes. Shall I erase it? Yes. 1 minute. Okay.
Done, sir. Shall I erase? Sir, what have you written that right side? ये वाला Yes, sir, in the box. मैंने अच्छा, मैंने ये बोला है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाए और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यही चीज मैं मैग्नीफाई करके बताऊंगा। I'll speak about electric field intensity। लेकिन क्या ये चारों केसेस क्लियर है स्टूडेंट्स? दो केस है, दोनों पॉजिटिव। स्टूडेंट्स अगर ये नेगेटिव के लिए होता ना तो दोनों के लिए, नेगेटिव के लिए भी सेम ही फॉर्मूला होता, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स कैन बी आस्क्ड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आल्सो। स्टूडेंट्स ये देखो मैंने क्या किया मालूम है, मैंने ये पॉजिटिव चार्ज मोशन में, यहाँ पे मेरा 2 सोर्स है स्टूडेंट्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 के डायरेक्शन में जा रहा है, जो इनवर्ट जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज गोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सेकंड चार्ज। यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1। इसलिए जब भी तुम वेक्टर्स पकड़ते हो ना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे भी फोर्स और पोजीशन वेक्टर देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ये सेम डायरेक्शन में है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कैन आई इरेज नाउ? Yes. हाँ स्टूडेंट्स, इरेज कर दूं? हाँ, sir. स्टूडेंट्स ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, लेकिन ये अभी मैं डायरेक्शन के हिसाब से दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये जो मेरा सोर्स है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली इसका फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसका फील्ड कंपैरेटिवली वीक होगा। अगर मैंने टेस्ट चार्ज को इसके विसिनिटी में लेके आया तो क्या होगा? तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा सर? इट विल अंडरगो फोर्स ऑफ रिपल्शन। स्टूडेंट्स ये जो पॉजिटिव चार्ज है, स्टूडेंट्स ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका फील्ड तो बाहर की तरफ ही जा रहा Yes. है ना? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, ड्यू टू सोर्स। ये जो मैंने बॉक्स में दिखाया था ना स्टूडेंट, जो तुम्हें नहीं पता चला था, और यहाँ पे क्लियर पता चलेगा। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स है,
उसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू E1 भी कंसीडर, माई सोर्स भी कंसीडर। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो नेचर इसका पॉजिटिव है, तो वो उसके डायरेक्शन में चला गया, रिपल्शन हुआ, है ना। वैसे अगर इसको मैंने नेगेटिव चार्ज किया होता स्टूडेंट्स, तो इसका मोशन किस तरफ जाता, तो ये होगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q0 बाय कैपिटल Q, है ना, and this force exerted on negative charge due to this, और ये है force exerted on what, positive charge Q0 by Q, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ गया। Can you say now can you say, हाँ सर, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट में। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. तो अगर किसी ने पूछा डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स? E विद एन एरो हेड, ये एक वेक्टर है स्टूडेंट्स, इट्स अ वेक्टर। अगर किसी ने पूछा इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, तो सबको पता है, डायरेक्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर स्टूडेंट्स, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इसका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा तो क्या लिखूंगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक इंडक्शन लिखूंगा। यूनिट क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स। कैसे आया स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज। ये तुम्हारा टेस्ट चार्ज होगा, तो फॉर्मूला क्या आ गया, E इक्वल टू F बाय Q। F क्या है, न्यूटन। चार्ज किस में होता है, कूलम में, तो न्यूटन कूलम इनवर्स हुआ। अगर सपोज मैंने इसका फॉर्मूला और आगे लिखा, E इक्वल टू F बाय Q, सपोज अगर मुझे नेचर पता है कि ना, सपोज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्स फोर्स, ओके, तो कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या है इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K फॉर अ मीडियम, सोर्स आएगा कैपिटल Q, टेस्ट चार्ज आएगा Q नॉट, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है R, तो कैन आई से दिस इज R स्क्वायर, तो कैन आई सब्स्टिट्यूट बैक हो भैया, तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, सो इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K स्टूडेंट्स, कैपिटल Q Q0 अपॉन R स्क्वायर, नीचे ये टेस्ट चार्ज था, ये कैंसिल हो गया। तो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स, 1/4 pi epsilon naught K for a medium, source upon square of the distance, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? Yes. यूनिट इज न्यूटन कूलम इनवर्स। कैन आई erase this स्टूडेंट्स? Yes. No, don't erase it. तुरंत बोलो स्टूडेंट्स। कैन आई erase स्टूडेंट्स? Sir, 1 minute. यानी स्टूडेंट्स जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखो ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा ध्यान में रखना कि ऊपर सोर्स ही आएगा, इफेक्ट नहीं आता, कैपिटल Q आएगा और इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। So students, electric field intensity is independent of the magnitude of test charge. कोई भी चार्ज रहने दो, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या कोई, वो तो कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स। यानी वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होगा, सोर्स के ऊपर डिपेंड होगा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द सोर्स।
हाँ, ये ध्यान में रखना कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि तुम बोलते हो अगर मैंने v लिखा स्टूडेंट्स विद एन आर तो उसको तुम क्या बोलोगे, वेलोसिटी। लेकिन सिर्फ मैंने v लिखा या v मैग्नीट्यूड में लिखा तो क्या बोलोगे, स्पीड, है ना। एक ही चीज के दो नाम, दैट इज एक वेक्टर में और एक स्केलर में। वैसे ये वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वही मैंने मैग्नेट में क्या बोला, इलेक्ट्रिक इंडक्शन या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हो तुम। फिनिश करो स्टूडेंट्स। हाँ सर। सर हो गया। Okay students, now let us go for the concept of your epsilon zero and dielectric students। ये ध्यान में रखना students, now please pay attention for this। अगर मैं लिखा हूँ, if I'm writing an epsilon zero, what is this called? This is called as permittivity of free space। Free space, that means I will consider as vacuum students। Okay, 1/4 pi epsilon zero students is 9 into 10 raised to 9. What is the unit? Then a student will say, sir, it's F is equal to 1/4 pi epsilon zero Q1 Q2 upon R square। लगूंगा तो इसका यूनिट क्या होगा? This will be न्यूटन, क्योंकि इसको सब्जेक्ट बना दिया न्यूटन, ये R स्क्वायर ऊपर जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर इनवर्स, ये तुम्हारा यूनिट होगा स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे मैंने K लिखा है, नहीं लिखा है, यानी we consider over here that electric charges are in vacuum। That is, direct K for vacuum students is always equal to 1. Since K for vacuum is always equal to 1, we consider. अगर 1/4 pi epsilon naught ये है, therefore exactly epsilon naught। So epsilon naught होगा 1/4 pi into 9 into 10 raised to 9 and 8.85 into 10 raised to minus 12। यूनिट क्या होगा? न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम्ब स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हुआ किसका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू। क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear students? Now listen carefully। K for vacuum is always equal to 1 students। लेकिन अगर if I say dielectric, dielectric का मतलब non conducting। Okay, dielectric for any medium other than air or vacuum is always greater than 1 students। K for vacuum students, K for vacuum is nearly equal to K for air। हम हमेशा सेम ही लेते हैं, लेकिन K for any medium is always greater than 1। The value of K for any medium is always greater than 1 students। ये ध्यान रखना। And dielectric का मतलब non conducting। Now what exactly this actually speaks about students? This actually speaks about with respect to on one side I'll put forward permittivity और एक तरफ में लिखता हूँ students dielectric। Now please students try to understand that। अगर मैंने epsilon zero डाला तो ये क्या हुआ? permittivity of free space। तो यहाँ पे क्या होगा? K for vacuum ही आएगा, क्योंकि ये free space के बारे में, that means in vacuum the two charges are placed in vacuum, तो K for vacuum आएगा जो हम 1 ले लेंगे। लेकिन अगर सपोज मैंने वही दो चार्जेस, अगर सपोज मैं ये दो चार्जेस लेता हूँ Q1 एंड Q2, अगर वही दो चार्जेस मैंने मीडियम में डाल दिया, है ना, मीडियम में डाल दिया, तो करस्पॉन्डिंग के क्या होगा? K फॉर मीडियम हो जाएगा ना। अगर मुझे रिलेशन चाहिए तो सिंपली आई कैन गो फॉर यूनिटरी मेथड।
I getting it? So what exactly the unity method is? Epsilon 0 K for a medium. यही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है. Epsilon 0 K for a medium cross multiplication is equal to what? Epsilon for a medium multiplied by K for vacuum. And what is the relation I'm getting it, students? Epsilon 0 K for medium is simply epsilon for a medium लिखा हुआ है. यानी अभी देखो, अभी तुम्हारा ये जो फॉर्मूला है फोर्स का स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ? क्यों नहीं. एक होगा 1/4 pi epsilon 0 K for a medium Q1 Q2 upon R square. दूसरी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 pi स्टूडेंट्स epsilon 0 K for a medium को can I write on only epsilon for a medium? Is this clear, students? Students, दोनों केस में क्या यहाँ पे epsilon 0 K, it depends on the medium. या epsilon 0 K की जगह पे can I put epsilon for medium? Why not? अभी देखो, सपोज अगर मैंने ये दोनों चार्जेस को वैक्यूम में डाला तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1. तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. समझ में आ रहा है? Suppose if I happen to go for water, K for water 81, तो यहाँ पे 81 आएगा स्टूडेंट्स, 81 आएगा डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर. यानी हर एक सब्सटेंस का K का वैल्यू अलग अलग है. यानी अगर मैं कोई भी डायइलेक्ट्रिक मीडियम लेता हूँ, नॉन कंडक्टिंग लेता हूँ स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ K विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1. डू कीप इन माइंड, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कंसीडर द वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 स्टूडेंट्स. K फॉर मेटल अगर तुम लेते हो तो K फॉर मेटल इज infinite. Is this clear to all of you students? Yes. Can I erase this? Yes. No, sir. Shall I erase this, students? No, sir. No, sir. So this is a very important concept. अभी मैं बताऊंगा कि what makes one to say, the answer is what makes one to say that electric field intensity inside the conductor is 0. Electric field intensity is always outside we consider, inside हमेशा 0 होता है. Now I can prove it if I give you the value of K for metal is infinity. So ये ध्यान में रखना, K for air और vacuum हमेशा 1 होता है. I getting it? अगर सपोज तुमने किसी ने पूछा व्हाट इज रिलेटिव permeability students, I getting it? Students, relative permeability is simply the ratio of permittivity of a medium to permittivity of free space. ये है relation students. It's permittivity of a medium to permittivity of free space की concept. यानी जैसे तुम्हारा refractive index का concept कैसा है students? Students, refractive index का concept कैसा है? Exactly यही concept ऐसा है. अभी देखो ना, नाम देखो, permit.
स्टूडेंट्स परमिट का मतलब क्या? परमिशन, अलाउंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, दो चार्जेस को मैं वैक्यूम में रखता हूँ। एक स्टूडेंट्स परफॉर्म करता है, दो चार्जेस को डिस्टेंस आर रखा है, दोनों को वैक्यूम में रखा है। दूसरे स्टूडेंट ने वही दो चार्जेस, वही डिस्टेंस, लेकिन एयर में रखा हुआ है। तीसरे स्टूडेंट्स ने वही दो चार्जेस, वही डिस्टेंस, लेकिन वाटर में रखा हुआ है। स्टूडेंट्स मुझे बताओ कहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन बहुत इफेक्टिवली अच्छा होगा? वैक्यूम में, एयर में, या वाटर में? हाँ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे सबसे स्ट्रांग होगा? वैक्यूम में होगा, एयर में होगा, वाटर में होगा? एयर का स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम नियरली इक्वल टू मान लेते हैं। और स्टूडेंट्स देखो ना, फोर्स में के कहाँ पे आ रहा है? स्टूडेंट्स के कहाँ पे आ रहा है? डिनोमिनेटर। यानी अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा कि नहीं होगा? हाँ स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? दो चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा है। स्टूडेंट, दो चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा है। अगर मैं वैक्यूम में रखूंगा तो के का वैल्यू कौन आता है? तो देयर विल बी अ फोर्स। लेकिन अगर मैंने दोनों चार्जेस को पानी के अंदर रखा, तो व्हाट इज द के फॉर वाटर? 81। अरे मेरा डिनोमिनेटर बढ़ गया, फोर्स कम हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Electrostatic force of attraction and repulsion, students, is inversely proportional to dielectric medium. इसके भी MCQs आते हैं। F1 by F2 is equal to K2 by K1, keeping the rest of the factors constant. लेकिन हम एयर और वैक्यूम को नियरली 1 पकड़ते हैं। Any other medium other than air or vacuum, the value of K is always greater than 1. K stands for dielectric, non-conducting. For example, mica, ebonite, fur, silk, glass, plastic, rubber, pure distilled water is again a dielectric we consider. Non-conducting we consider. K for metal is infinite. K for metal क्या students? Infinite. Just hold us students please. Just hold. Students, what is K for metal? Infinite. अगर मैं यहाँ पे infinity डालता हूँ तो क्या होगा students? Students, if I keep infinity, what is my answer? Students, जीरो हो जाएगा। 0 हो जाएगा। यानी तुम उसका मतलब समझते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो गया है ना स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। यानी स्टूडेंट्स कहने, अभी मैं इरेज करूं, इसको इरेज करूं। हाँ स्टूडेंट्स, इरेज कर दो इसको। Yes. ओके, अभी आंसर देखना स्टूडेंट्स। नाउ प्लीज पे अटेंशन। सपोज इफ आई गिव यू 2 प्लेट्स, ठीक है? ये दो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हैं स्टूडेंट्स। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस है।
नेगेटिव चार्ज इंड्यूस है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ओके। तो मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस चार्ज प्लेट इट्स E, में जिसको E0 लिखता हूँ बाहर की तरफ है ना? Yes. ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और स्टूडेंट जहाँ पे एंड्स होगा ना स्टूडेंट्स, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर्व होगी, ओके। एंड्स के ऊपर स्टूडेंट्स हमेशा एंड्स के ऊपर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर्व होगी, नहीं तो सारे पैरेलल होते हैं। अभी ध्यान से सुनो, प्लीज पे अटेंशन। सपोज अगर मैंने सपोज एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया, इफ आई एम टेकिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अ शीट ऑफ माइका या वाटर। स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल इज इट अ पोलर मॉलिक्यूल? यस इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या है सर? जिसका, ध्यान से सुना स्टूडेंट, जिसका सेंटर ऑफ चार्जेस आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। उनके बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है, क्योंकि वो एक डाइपोल क्रिएट करता है। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल लूं स्टूडेंट्स, तो ये ऑक्सीजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, मैंने लास्ट टाइम बताया था स्टूडेंट्स 105 डिग्री। तो इनका जो है दो हाइड्रोजन के बीच में स्टूडेंट्स, दो हाइड्रोजन के बीच में ये इसका पॉजिटिव चार्ज होगा +2E। ये जो ऑक्सीजन है उसका यहाँ पे, इफ आई हैव टू गो फॉर इट, ये होगा -2E। ये किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ये देखो, इसका इसका सेंटर ऑफ चार्ज आर दे एट अ सर्टेन फाइनाइट डिस्टेंस। यस, एक होगा -Q, जिसका चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 × 1.6 × 10⁻⁹ यानी 3.2। लेकिन नेगेटिव में इसका क्या होगा? +3.2 × 10⁻⁹ पॉजिटिव में। तो एक क्या होगा? -Q, दूसरा क्या होगा? +Q। क्या ये डाइपोल क्रिएट करता है? हाँ सर, ये डाइपोल क्रिएट होता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये किसके लिए है सर? ये है पोलर मॉलिक्यूल के लिए। यानी पोलर मॉलिक्यूल, सपोज अगर ऐसा कोई मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्या ये इंसुलेटर है? हाँ इंसुलेटर है ना, वाटर इज एन इंसुलेटर। या ऐसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सपोज कोई स्लैब को इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया, तो देखो क्या होगा। ध्यान से सुनना, जैसे तुमने स्लैब को इन दोनों के बीच में रख दिया स्टूडेंट्स, सी व्हाट्स गोना हैपन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स। अगर ये डाइपोल, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर ये डाइपोल थोड़ा सा भी अलाइन रैंडम होंगे ना, जैसे तुमने स्लैब को अंदर डाला स्टूडेंट्स, सारे डाइपोल अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। ये देखो, ये सारे डाइपोल अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल अलाइन। यह है नॉन कंडक्टिंग मीडियम, यह है नॉन कंडक्टिंग मीडियम, यह है नॉन कंडक्टिंग मीडियम। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर? यस। कैसे? कैसे? तुम तुरंत बोलोगे सर ये जो फील्ड है स्टूडेंट्स, ये जो फील्ड है, ये है फील्ड P1 और P2 की वजह से, है ना। अंदर देखो ऑरिक फील्ड क्रिएट हुई है, अंदर ऑरिक फील्ड क्रिएट हुए, किसकी वजह से सर? डाइपोल की वजह से, क्योंकि डाइपोल का हर एक का पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव है, तो कहने से अंदर ऑरिक फील्ड क्रिएट हुई है। अरे हाँ सर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। ये क्या है? ये है इंसुलेटर। दिस इज डाइलेक्ट्रिक। Are there any electric fields passing inside? Yes, there are electric field inside. Electric field passes inside an insulator but cannot pass through a conductor. अब मेरे को बताओ स्टूडेंट्स, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर पैदा हुई है बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल, इसकी वजह से रिजल्टेंट फील्ड सिस्टम की क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या कम होगी? रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा सर? रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर सम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर है ना स्टूडेंट्स, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा सर? ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, सर ये जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी जे कैप की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगर मैं रिजल्टेंट देता हूं तो कहने से दिस कम्स E0 माइनस EI। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, बट विल द फील्ड लाइंस विल पास थ्रू इट? यस,
ये किसके हिसाब से, ये डाइलेक्ट्रिक के हिसाब से मैंने लिया। यानी डू इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। अभी उसी का क्वाइट ऑपोजिट लेता हूँ, इसी का क्वाइट। अभी सपोज मैंने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, व्हाट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो सबको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। सर फोर्स का फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स टेस्ट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। सर आपने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए फॉर अ मीडियम स्टूडेंट्स सोर्स अपॉन आर स्क्वायर, है ना। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के फॉर अ मीडियम, है ना। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, फोर्स भी कम होगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा। So does electric field intensity depends on to the medium inserted? Yes, depends on to the medium. जैसे जैसे value of K will go on increasing, electric field intensity decreases. तभी जाके students electrostatic force of attraction is preferably considered in vacuum or in air. Because the value of K or air is 1. Field and force is maximum in that case. क्या इतना सा पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. और ये क्यों हुआ, ये देखो ना डिफरेंस हुआ ना, डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। हेलो देखो ना, जैसे मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। एक तो इनवर्स वेरिएशन के हिसाब से तुमने किया और ये मैंने डायग्राम के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर दिया। अरे हाँ सर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के उसमें तो डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल में से कुछ फील्ड कम हो गया तो रिजल्टेंट फील्ड तो मेरा कम होना ही था। लेकिन वही अगर मैं एयर और वैक्यूम में लेता स्टूडेंट्स तो वहां पे फील्ड इंटेंसिटी और ज्यादा होता। अभी हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को निकालते हैं। अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कॉपर प्लेट। ये क्या है सर, ये तो है कंडक्टिंग प्लेट, ये तो कंडक्टिंग प्लेट हो गई। अरे सर इसमें तो अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर, आप क्या बात कर रहे हो, इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे सर यहाँ पे तो मेटालिक कंडक्टर है सर, के फॉर मेटल तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे तो डाइपोल्स है ही नहीं। हेलो यहाँ पे तो डाइपोल्स है ही नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है नहीं, और के फॉर मेटल इंफिनिटी है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के फॉर मेटल, व्हाट इज के फॉर मेटल, के फॉर मेटल इज इंफिनिटी, व्हाट इज 1 upon infinity, 0. So is there any electric field intensity inside a metal conductor? No. But is there any field outside? अरे हाँ यार है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड की, ये P1 और P2 की वजह से फील्ड बाहर की तरफ है लेकिन अंदर नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेटल कंडक्टर है। होता क्या है, जैसे तुमने कॉपर प्लेट डाला तो हुआ क्या सर, जैसे मैंने कॉपर प्लेट डाला तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो क्या करेगा सर, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने जो कॉपर है अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको मूव कौन कर रहा है, ये बाहर की फील्ड, ये बाहर की फील्ड, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट, लीडिंग टू व्हाट, लीडिंग टू इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स ये हुआ कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये हुआ कंसेप्ट मोशन ऑफ चार्ज का, और ये हुआ कंसेप्ट मोशन ऑफ चार्ज एट रेस्ट, सॉरी चार्ज एट रेस्ट। ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तभी जाके तुमने देखा होगा कोई भी अगर तुम कॉपर वायर लेते हो, सपोज अगर मैंने इसको कॉपर वायर लिया और इसको मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव और नेगेटिव से स्टूडेंट्स, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Is there any electric field intensity inside a conductor, metallic conductor? No, all the time 0.
Yeah, ये clear हुआ students? Is this clear to all of you? Yes. क्या मैं इसको erase कर दूं students? Yes. No, sir. Okay. Sir, 1 minute. ये तुरंत yes कौन बोलता है erase करने के लिए? हाँ? नॉर्मन बोलता है तुरंत erase करो. Yes, sir. और हर्ष बोलता है नहीं सर मुझे लिखना है. हाँ? हाँ सर. Okay, what's the strength of this batch students? कितना है ये batch का strength कितना है? Sir, 40. हाँ? 40. 40 लेकिन स्टूडेंट हमेशा आता है 30-32 बस. और उसमें से भी जो लास्ट के 15-20 मिनट होते हैं उसमें से तो गुल हो जाते हैं. हार्डली 22-23 कितने दिखाई दे रहे हैं? हाँ 21 में से 21 में हूँ. पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं हैं, क्या है स्टूडेंट्स? अभी तारीख आना है देखा अंदर. जैसे बोला कि स्टूडेंट्स छोड़ देते बीच में तारीख आना शुरू कर. स्टूडेंट्स ये सब ध्यान में रखना प्लीज. डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? Getting it? Dielectric can allow students. Dielectric will certainly allow electric field lines to pass through an insulator, but they cannot pass through a conductor. Charges always reside on the surface. For a unit positive charge, field electric field lines is always outwards normally, and for a negative charge, field lines are always inwards normally. Do electric field lines form a closed loop? Never. Do electric field lines intersect each other? Never. Sir, what are you written right? कहाँ पे? ये Sir, directly down. E is inversely proportional to K for metal, and K for metal is infinite. K for metal is infinite, students. So 1 upon infinity is 0. वो लिखा मैंने. और फिर एक कॉपर वायर बता दिया है जो फील्ड बार की तरफ है. इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाते हैं तो यहाँ पे मोशन ऑफ चार्ज होगा. यहाँ पे स्टैटिक है चार्ज क्योंकि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है. And that is because of dielectric, students. Sir, done. Okay. Okay, students. Now, since you have got the concept of electrostatic force, electric field we consider. Now, students, see your next part here, that is called as principle of superposition, students. Okay, principle of superposition of electric field and principle of superposition of electrostatic force.
स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग ने ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर बताया था, है ना स्टूडेंट्स, एक मास रखा था और दूसरे मासेस के हिसाब से व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा था, तो हमने वेक्टर्स यूज किया था स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी है स्टूडेंट्स, वी कैन गो फॉर वेक्टर्स इन दैट केस। स्टूडेंट्स अगर सपोज ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोला कि सपोज सिंपल एग्जांपल ले लेना स्टूडेंट्स, ओके, सपोज अगर मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया स्टूडेंट्स, and if I give you 3 charges at point 1, at point 2 and point 3, each of magnitude plus j, okay, are at a distance 1 meter apart from each other students. My question to you students, what is the resultant electric field intensity? Resultant electric field intensity at centroid of the triangle. तो क्या बोलोगे तुम? बताओ। Electric field intensity at point G. The same type of question we have done in gravitation. Pardon? The same type of question we have done in gravitation. हाँ तो वही है ना, अभी अगर मैंने ध्यान से सुना, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए सर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K फॉर मीडियम। और आपने बोला था स्टूडेंट सर सोर्स आएगा वहां पे, टेस्ट चार्ज नहीं आएगा, जिसपे इफेक्ट हो रहा है वो कभी नहीं आएगा E के अंदर, क्योंकि E इज इक्वल टू F/Q। स्टूडेंट्स ये F/Q, ये Q कैंसिल हो जाएगा F का फॉर्मूला के साथ में, तो अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अभी हम अज्यूम करते हैं कि ये वैक्यूम है। स्टूडेंट्स हमेशा तुम प्रॉब्लम्स करोगे, और अगर सर ने कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में नहीं बोला तो बिंदास इसको 1 ले लो स्टूडेंट्स, और इसको तुम क्या ले लो, कूलम्ब्स कांस्टेंट, so E is equal to C Q by R square, ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ। So students, what is electric field intensity we consider? So the electric field intensity at a point G due to this charge will be what? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, assume एक पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point G due to charge 3, है ना स्टूडेंट्स। ये देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स एट अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू 1 ना स्टूडेंट्स। क्या ये दोनों वेक्टर्स है? यस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? सर ये होगा 30, ये होगा 30, सर ये होगा 120, तो ये होगा 120, है ना स्टूडेंट्स। कैन आई फाइंड आउट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? हाँ सर, उसका इस तरफ जाएगा रिजल्टेंट। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? Yes. स्टूडेंट्स ये जो रिजल्टेंट है और 2 का भी तो इफेक्ट हो रहा है ना स्टूडेंट्स, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट जाएगा। Try to find out the resultant electric field intensity due to do with 120 degrees. वेक्टर नोटेशन करो, और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका देखो क्या आंसर है। देखो other two fields are equal in magnitude opposite direction. Am I getting the answer resultant 0? कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स हाउ टू गेट इट? यानी तुम्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ जा रहा है, इनका रिजल्टेंट यहाँ पे है। एग्रीड? सामने वाला चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन स्टूडेंट्स। तो अगर मुझे रिजल्टेंट 0 चाहिए तो ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो मुझे कुछ रिजल्टेंट आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes. हाँ सर। Try it out for your homies people. Agree students? Anybody give me the answer for this? इसका आंसर आ सकता है किसी को पता? हाँ students, can you get the answer? देखो सारों का डिस्टेंस सेम ही है। देखो डिस्टेंस क्या है सर, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा। देखो सी सब में सेम है, क्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, ये सब में आर है, ये भी आर है, तो सर E1 ये और ये सेम है। रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट्स इनका? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, है ना, प्लस 2 स्क्वायर ऑफ दिस cos ऑफ 120। cos ऑफ 120 क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज cos ऑफ 120? -हाफ। ये देखो क्या आंसर आ रहा है, ये ई स्क्वायर कैंसिल होगा, कहने से माय रिजल्टेंट इज इक्वल टू ई ओनली। सामने भी क्या है, ई आएगा ना। आर द टू इन ऑपोजिट डायरेक्शन? यस। रिजल्टेंट मेरा आंसर क्या आएगा?
0. सेम थिंग हम लोग ने फोर्स के हिसाब से लिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पे भी आंसर क्या आ रहा था? Students, is this clear to all of you students? Yes. Okay. So students, next lecture will be continuing further right from here. Okay. Principle of Sure. superposition of force, yes. Principle of superposition of force की वजह से So will be that is resultant of the two charges, no? Pardon? So that E will be resultant of two charges, no? That's why it will be it will cancel. यहाँ पे जो E होगा वो इन दोनों की वजह से होगा। इन दोनों देखो ना, एक का इसका E मैंने ये लिखा है, इसका भी E मैंने ये लिखा है, ट्वाइस E स्क्वायर cos of 120 माइनस हाफ, ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, ये माइनस E स्क्वायर हुआ, ये कैंसिल हो गया, रूट ऑफ E स्क्वायर E हुआ, तो इनका रिजल्टेंट E इस तरफ आएगा, ब्लू इंक इज ऑल्सो E, फॉर्मूला वही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, cos of 180 is -1, रिजल्टेंट 0 आएगा। सॉल्व करके देखो ना, सॉल्व करके देखो, गेट मी द आंसर। ओके, Yes, sir. next lecture will be continuing further experiments. Okay students? Okay, sir.